Hello to all those who are watching this video, and this is the video for the students of class 11th biology, and the topic is taken from the chapter 7 animal tissues. Okay, so the previous video was based on connective tissue proper. Okay, and this is a specialized connective tissue. So means the special forms of the connective tissue we will study, like in the connective tissue proper. You have just gone through loose connective tissue and dense connective tissues. These were, and these are a specialized one. So especially we will study cartilage, bone. Means the specialized tissues are cartilage, bone, blood, reticular. Okay, these are. So in this video I'll cover cartilage, bone and reticular. Okay, blood will be in the next video. So begin with the reticular connective tissue. So when we say, so this is produced by modified fibroblast. You know very well fibroblast is a kind of cell. Okay, cell of connective tissue, and these fibroblasts that modify to form the reticular cells, and these produce reticular fibers. Okay, and these fibers just get arranged like a mesh, means एक network की तरह ये arrange होते हैं, and it is similar to dense irregular connective tissue. उसमें भी सारे fibers जो रहते हैं वो parallel नहीं होते, उनका alignment नहीं हुआ करता. Same is here also. And reticulate का मतलब ही होता है जाल. Okay, it is like mesh. So the difference between them means dense irregular connective tissue and this reticular connective tissue is that the reticular fibers are thinner and compose a more delicate mesh. ठीक है, इनका जो mesh बना होता है वो delicate होता है. Okay, and these tissues supports the stroma of body organs, especially lymphoid, and it is present in red bone marrow, lymph nodes and the spleen. Now the cartilage. Cartilage, पहले तो ये देख लें कि bone और cartilage क्या होती है. For very simple, इन सिंपल वर्ड्स हम कहना चाहें बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस, तो कार्टिलेज जो होती है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है. जैसे कि आप अपने ईयर पिन्ना को जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं. यदि ये बोन होती तो ये टूट जाती. ओके, तो ये सॉफ्ट है पिन्ना, ईयर पिन्ना हमारा सॉफ्ट है, तो दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. एंड हमारी नोज टिप ये भी सॉफ्ट है. Okay, पर यहाँ bone support नहीं है. There is also the cartilage one. So cartilages are softer as compared to the bone. So it is a vascular connective tissue that connects bones at the joints and comprises walls of upper respiratory airways and external ear. External ear is pinna. Okay. Anatomically it is surrounded by perichondrium, इसकी बाहर वाली membrane है. ओके, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की है. एंड पेरिकॉन्ड्रियम जो हुआ करती है, इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स एंड इट सप्लाइज द नरिशमेंट टू द कार्टिलेज. मतलब पेरिकॉर्डियम जो आउटर साइड की लेयर है वहाँ से सप्लाई होती है. ठीक है, कार्टिलेज में अंदर की तरफ टुवर्ड्स सेंट्रल द न्यूट्रिशन इट इज सप्लाइड, क्योंकि कार्टिलेज के बीच में कहीं भी वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं हुआ करती, तो सप्लाई इसमें वन साइड से होती है. Okay, and the chief cells of cartilage, these are chondrocytes, and the chondrocytes are present into the cavities. cavities में present होती हैं और उन cavities को हम कहते हैं lacuna. Okay. और जो इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो हुआ करता है उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि जो कार्टिलेज को फ्लेक्सिबल बनाता है, मीन्स वो सॉलिड नहीं हुआ करता है. ओके, तो वो इसको फ्लेक्सिबल बनाता है कार्टिलेज को. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, हेलाइन, इलास्टिक एंड फाइब्रो कार्टिलेज. ओके, सो ये अलग अलग दे आर डिफर इन द कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के हुआ करते हैं, उनमें ये डिफर करती हैं. ओके,
तो इनकी लोकेशन भी जो है वो अलग अलग हुआ करती है, राइट। जैसे कि इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो ईयर में प्रेजेंट है। एपिग्लॉटिस, यू नो वेरी वेल एपिग्लॉटिस क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुआ करता है, और मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये जो एपिग्लॉटिस हुआ करता है, ये ग्लॉटिस का एक लिड है, ये फूड को रेस्पिरेटरी सिस्टम में आने नहीं देता, तो वहाँ प्रेजेंट हुआ करता है। सो इस तरीके से जैसे फाइब्रो कार्टिलेज है, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अब ये क्या होती हैं, ओके क्या होता है, हमारी जो बैकबोन है वो बहुत सारे स्मॉल पीसेस से, वर्टिब्रा उनसे बनी हुई है। अब वो दो वर्टिब्रा के बीच में एक कार्टिलेज होती है ताकि मूवमेंट जो हो वो फ्रिक्शनलेस हो, ओके तो वहाँ पे, इसलिए इसका नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वहाँ पे प्रेजेंट हुआ करती है ये। ना bone you know very well, it just makes our skeleton of the body, ये उसका बना है, and it is इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड हुआ करता है, एंड इसमें जो मीन्स मैट्रिक्स इज मिनरलाइज्ड, एंड उसमें बहुत सारी, यू विल गेट अ पिक इन द नेक्स्ट स्लाइड, उसमें मैट्रिक्स जो हुआ करता है वो रिंग्स के फॉर्म में सर्कुलर लेयर्स में अरेंज होता है, और उन रिंग्स को ही हम लेमिली कहते हैं, ओके एंड ये सारी लेमिलीज जो होती हैं, कुछ हेवर्सियन कैनाल होती हैं, हेवर्सियन कैनाल के चारों तरफ जो है वो रिंग्स में प्रेजेंट हुआ करती है, दीज लेमिलीज, ओके लेमिलीज आर एक्चुअली व्हाट, मैट्रिक्स इस फॉर्म में अरेंज होता है, राइट तो इनका अरेंजमेंट मीन्स ECM का इस तरीके से होता है, एंड जो ECM है उसी में सेल्स होती हैं ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स, ओके ये सेल्स होती हैं मेजरली। ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं ये बोन मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करती हैं, ओके और ऑस्टियो जो क्लास्ट होती हैं, ओके ये बोन मैट्रिक्स को एब्जॉर्ब करती हैं, तो दे आर अपोजिट इन फंक्शन, and this synchronized function of these cells is necessary for the recovery of broken bones and for the general well-being of the skeletal system, okay so it these specialized cells and ECM, okay it serves as a storage site for the calcium and phosphate, you know very well bones जो होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, तो ये उसमें प्रेजेंट हुआ करता है, किसमें, मैट्रिक्स में, ओके हियर यू कैन सी द डायग्राम, इसमें ऑस्टियस टिश्यू, ऑस्टियस मीन्स बोन टिश्यूज दिख रहे हैं, किस तरीके से लेमिलीज अरेंज है रिंग के फॉर्म में, ओके जबकि नेक्स्ट साइड में यदि हेलाइन कार्टिलेज में देखेंगे तो जो सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो एक कैविटी में प्रेजेंट है, जिनको हम लैक्यूना कहते हैं, ओके सो दिस इज द डिफरेंस।